ओम शांति। आज बाबार 21/11/2020 मुरली। आज के मुरलिर विशेष महावाक्य बाबा बोलছেন बच्चे যেমন কোনো পণ্ডিত পুরোহিত কোনো ভালো কাজ করার জন্য একটা ভালো মুহূর্ত বের করে দেয়, শুভ মুহূর্ত বের করে দেয়, তো সেরকম বাবা বলছেন যে সবথেকে শ্রেষ্ঠ মঙ্গলকারী মুহূর্ত হচ্ছে সঙ্গম যুগ, যে সময় স্বয়ং কল্যাণকারী বাপ দাদা এসেছেন তোমাদেরকে সর্বোত্তম বানানোর জন্যে, সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্য তোমাদেরকে দেওয়ার জন্যে। তো এই জন্যে তোমরা এই সময়কে একদম মিস করো না, ব্যর্থ করো না। সঙ্গম যুগের এক এক সেকেন্ড খুবই মূল্যবান, তো তুমি পুরুষার্থ করে সফল করো। যত উঁচু ভাগ্য তোমরা তৈরি করতে চাও সেটা করে নাও, এই সময় আর ফিরে আসবে না। তো সবথেকে শ্রেষ্ঠ মঙ্গলকারী কল্যাণকারী যুগ হচ্ছে এই সঙ্গম যুগ, আর সঙ্গম যুগের এক একটা সেকেন্ডই হচ্ছে আমাদের জন্যে সবথেকে শ্রেষ্ঠ শুভ মুহূর্ত। তারপরে আজকে বাবা বললেন যে যদি কেউ দেহ রেখে দিচ্ছে তাহলে সেখানে তোমাকে কান্নাকাটি করার দরকার নেই। ব্রাহ্মণ বাচ্চারা কোনো ব্যাপারে কাঁদতে পারে না, কেন তোমরা তো জানো যে প্রত্যেক আত্মার মধ্যে নিজের নিজের পার্ট ভরা আছে, এবং একটা আত্মা যখন দেহ ছাড়ছে তার মানে তাকে নতুন পার্ট প্লে করতে হবে। তো সে আত্মা তো কোনো দিনই মরে না। তো এইভাবে তোমরা এই জ্ঞান তো জেনেই গেছো, তো তোমাদেরকে কান্নাকাটি করার দরকার নেই। আর তোমরা জানো যে এখন আমরা 21 জন্ম পর্যন্ত কখনো আমাদের অকাল মৃত্যু হবে না, আমাদের ইচ্ছা মৃত্যু আছে। আর সত্যযুগে 21 পিঢ়ি পর্যন্ত আমরা পুরো সুখী থাকব। তো এইভাবে সত্যযুগের চিন্তা করে তোমরা এই সমস্ত দুঃখ থেকে নিজেকে মুক্ত করো। বাবার বাচ্চা হয়েছো, যাকে তোমরা দাপর কাল থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলে সে ভগবান স্বয়ং এসে গেছে, যে পার ব্রহ্মে ছিল সে নিজেই এসে গেছে, তাকে তোমরা পেয়ে গেছো, তাহলে আর কিসের কান্নাকাটি। তো বাবার এটা পছন্দ হয় না যে ব্রাহ্মণ বাচ্চা কোনো ব্যাপারে কান্নাকাটি করবে। বাবা বলছে তোমাদের দুঃখের দিন শেষ হয়ে গেছে, এবার সুখের দিন আসছে। আসুন এবার আমরা বাবার পুরো মুরলি विस्तारितভাবে শুনব। मीठे बच्चे, यह संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। বলছেন এই সঙ্গম যুগ হচ্ছে সর্বোত্তম হওয়ার শুভ লগ্ন, আর এই সময় বাবা তোমাকে নর থেকে নারায়ণ হওয়ার পড়াচ্ছেন। আজকের প্রশ্ন হচ্ছে तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते। বলছেন তোমাদের কাছে এমন একটা কি নলেজ আছে যার কারণে তোমরা কোনো ব্যাপারে কান্নাকাটি করতে পারো না, মানে কাঁদতে পারো না। তো বাবা উত্তরে বলছেন तुम्हारे पास इस बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है। तुम जानते हो इसमें हर आत्मा का अपना पार्ट है। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं, फिर हम रो कैसे सकते। पर वह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए। बख्तावर बच्चे कभी रोते नहीं हैं। बाबा बोलছেন যে তোমরা জানো যে ড্রামা একদম ফিক্সড, এই ড্রামাতে যা কিছু চলছে প্রত্যেক ঘটনা 5000 বছর আগেও হয়েছিল, তো নতুন করে কোনো নতুন ঘটনা তৈরি হচ্ছে না। তো প্রত্যেক আত্মা নিজের নিজের অবিনাশী পার্টকেই প্লে করছে। তো আমরা এখন ড্রামার পুরো ব্যাপারটা জেনে গেছি, বাবা এখন আমাদেরকে সুখের বর্ষা দিচ্ছেন, তাহলে আমরা আর কেন কাঁদবো। আমাদের তো দুঃখের দিন শেষ হয়ে গেল, আমাদের সুখের দিন আসছে। আর মূল চিন্তা ছিল ঈশ্বরকে পাওয়া, পার ব্রহ্মে যে আছে তাকে পাওয়া। তো তাকে যখন পেয়ে গেছি তখন আর কোনো চিন্তা নেই। তো বাবা বলছে তোমরা তো বক্তাবরের বাচ্চা, মানে যে খুব ধনী, যার ধনের কোনো গুনতি নেই, তার তোমরা বাচ্চা, তো তোমাদের কিসের চিন্তা। তো বাবা বলছে বক্তাবর বাচ্চা কখনো কাঁদবে না। যারা বাবার এত উঁচু পিতার যে সন্তান, সেই বাচ্চার কান্নাকাটি শোভা দেয় না। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को एक बात समझाते हैं। चित्रों में भी ऐसे लिखना है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाते हैं।
तुम भी किसी को समझाते हो तो तुम आत्मा कहेंगे। शिव बाबा ऐसे कहते हैं। यह बाप भी कहेंगे बाबा तुमको समझाते हैं। यहाँ मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाते, लेकिन परमात्मा आत्माओं को समझाते हैं या आत्मा आत्मा को समझाती है। ज्ञान सागर तो शिव बाबा ही है, वह है रूहानी बाप। इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। जिस्मानी अहंकार यहाँ छोड़ना पड़ता है। बाबा बोलছেন बाबार घरे कोनो रकम देह अहंकार तुमरा राखो ना। इस समय तुमको देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। कर्म भी भल करो, धंधा धोरी आदि भल चलाते रहो। बाकी जितना समय मिले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा बोलছেন যে কর্ম করো, ধান্দা দৌড়ি সবই করো, মানে নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্য যা কিছু চাকরি ব্যবসা কর্ম আছে সেটা করো, তার মধ্যেও যেটুকু সময় পাচ্ছ তো নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো, तो विकर्म विनाश होंगे। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आया हुआ है। वह सत्य है, चैतन्य है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहते हैं। और जे परम सत्य जे चैतन्य स्वरूप जे सत्य चित्त आनंद स्वरूप से निजेई एखन ब्रह्मा बाबार शरीरे एसे तुम्हादेरके ज्ञान शोनाच्छे। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा कोई भी मनुष्य मात्र की यह महिमा नहीं है। बच्चे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ए तीनजन के বা কোনো দেবী দেবতাকে সত্যচিত্ত আনন্দ স্বরূপ বলা যাবে না। কেন? যার চিত্ত সবসময় সত্য আছে, যে কখনো মিথ্যার আধার নেয় না, সে তো একমাত্র পরমাত্মাই হতে পারে। এই জন্যে পরমাত্মাকেই বলা হয় গড ইজ ট্রুথ অ্যান্ড ট্রুথ ইজ গড বা সত্যম শিবম সুন্দরম। तो ऊंच ते ऊंच भगवान एक ही है, वह है सुप्रीम सोल। तो यह ज्ञान भी तुमको सिर्फ इस समय है, फिर कभी मिलना नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं तुमको आत्म अभिमानी बनाए बाप को याद कराने, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो और कोई उपाय नहीं। भल मनुष्य पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। पतित पावन सीता राम कहें तो भी ठीक है। तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो, वह है एक राम भगवान। तुम भक्तों को फल चाहिए भगवान द्वारा। मुक्ति व जीवन मुक्ति यह है फल। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता वह एक ही बाप है। ड्रामा में ऊंच ते ऊंच पाठ वाले भी होते हैं तो नीचे पाठ वाले भी होते हैं। বলছেন ড্রামাতে যেমন হিরো হিরোইন তাদের উঁচু পাঠ থাকে, আবার অনেকের সাধারণ পাঠও থাকে। তো সেরকম এই বেহদের ড্রামাতে লক্ষ্মী নারায়ণ রাধে কৃষ্ণ এদের পুরো হিরো পাঠ আছে। বাকি যারা যত কলিযুগ শেষের দিকে আসছে তাদের অল্প পাঠ আছে, ছোট পাঠ আছে। तो यह बेहद का ड्रामा है, इसको और कोई समझ न सके। तुम इस समय तमो प्रधान कनिष्ठ से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो। सतो प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता है। इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं हो। বলছে এখন তোমরা শতপ্রধান হওনি, এই জন্য তোমাদেরকে सर्वोत्तम बोला যাবে না। बाप तुमको सर्वोत्तम बनाते हैं। यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता रहता है इसको कोई भी नहीं जानते। कलयुग संगम युग, फिर होता है सतयुग। पुरानी को नई कौन बनाएंगे? तो बाप बिगर कोई बना न सके। तो बाप ही संगम पर आकर पढ़ाते हैं। बाप न सतयुग में आते हैं न कलयुग में आते हैं। बाप कहते हैं मेरा पाठ ही संगम पर है, इसलिए संगम युग कल्याणकारी युग कहा जाता है।
বা বলছেন আমি না সত্যযুগে আসি না আমি কলিযুগে আসি, আমি তো সত্যযুগ আর কলিযুগের মাঝখানে আসছি। তো এটাই হচ্ছে সবথেকে শুভ যুগ, कल्याणकारी युग, पावन युग। तो यह है ऑस्पिशियस, बहुत ऊंच शुभ समय संगम युग। যেমন পুরোহিত রাজে কোনো ভালো কাজের একটা সুন্দর শুভ মুহূর্ত বলে দেয়, তো ঠিক সেরকম বাবা বলছে যে সবথেকে শুভ মুহূর্ত হচ্ছে এই সঙ্গম যুগ, যখন স্বয়ং বিশ্ব কল্যাণকারী পতিত পাবন শিব বাবা নিচে এসেছেন ধরাধামে, আর এই কলিযুগকে বিনাশ করে নতুন সত্যযুগ সৃষ্টির স্থাপনা হচ্ছে, সত্যযুগ দুনিয়ার উদ্ঘাটন হচ্ছে। তো বলছে এর থেকে সুন্দর শুভ মুহূর্ত আর কিছু হতে পারে না। তাই বাবা বলছে যে এই শুভ লগ্নকে তোমরা ভুলেও তোমরা ব্যর্থ করো না, এই সঙ্গম যুগের এক একটা সেকেন্ডকে তোমরা सफल करो, सार्थक करो। तो जबकि बाप आकर तुम बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं, मनुष्य तो मनुष्य ही हैं, परंतु दैवी गुण वाले बन जाते हैं। उनको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाप कहते हैं मैं यह धर्म स्थापन करता हूँ, इसके लिए पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। पतित पावन एक ही बाप है। বাবা বলছেন আমি যে ধর্ম স্থাপন করছি আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম, এই ধর্ম পবিত্রতার শক্তি ছাড়া স্থাপনা হতেই পারে না, রচনা হতেই পারে না। এই জন্যে যারা দেবী দেবতা কুলের আত্মা, যারা সত্যযুগে যেতে চাইছে তাদেরকে এই সঙ্গম যুগে বিকার ছাড়তেই হবে, পবিত্র হতেই হবে, মায়ার উপরে জয় প্রাপ্ত করতেই হবে। तो पतित पावन एक ही बाप हैं, बाकी सब है ब्राइड्स भक्तियाँ। पतित पावन सीताराम कहना भी ठीक है, परंतु पिछाड़ी में जो फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते वह रॉन्ग हो जाता है। एक गान আছে না, पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। तो बाबा বলছেন যে সকল আত্মারূপী সীতার আসল রাম তো এক শিব বাবাই আছে, বাকি ত্রেতা যুগের রাজা রাম তো অন্য আছে। তো সেই ত্রেতা যুগের রাজা রামের সঙ্গে পতিত পাবন সীতারামকে এক করে দেওয়া বলছে এটা ভক্তি মার্গে ভুল হয়ে গেছে। मनुष्य बिगर अर्थ जो आता है सो बोलते रहते हैं, धुन लगाते रहते हैं। तुम जानते हो चंद्रवंशी धर्म भी अब स्थापन हो रहा है, बाप आकर ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं। इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, यह परिवार है। यहाँ न तुम पांडवों की न कौरवों की रजाई है। বলছে এখন না কৌরব মানে যারা জ্ঞানে চলে না, যারা বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি ভারতবাসী অথচ তারা বাবাকে এখনও চেনে না, তো তারা হচ্ছে কৌরব বংশ, তো তারাও বাবাকে জানে না এবং তাদেরও কোনো এখন রাজ্য ভাগ্য নেই, রাজতন্ত্র নেই, প্রজাতন্ত্র চলছে। আর বাবা বলছেন তোমরা হচ্ছে পাণ্ডব, তোমরা তো গুপ্ত রূপে পুরুষার্থ করছো, শ্বেত বস্ত্র ধারণ করে তোমরা এখন একরকম বনবাসে আছো, তো তোমাদেরও রাজসত্তা নেই। তো বাবা বলছেন না কৌরবদের রাজ্য সত্তা আছে না পাণ্ডবদের, সত্যযুগে দেবী দেবতাদের রাজ্য সত্তা হবে। तो यह परिवार है। तो गीता जिसने पढ़ी होगी उनको यह बातें जल्दी समझ में आएंगी। यह भी है गीता। कौन सुनाते हैं? भगवान। तुम बच्चों को पहले पहले तो यह समझानी देनी है कि गीता का भगवान कौन है। वह कहते हैं कृष्ण भगवान वाच। अब कृष्ण तो होगा सतयुग में, उनमें जो आत्मा है वह तो अविनाशी है, शरीर का ही नाम बदलता है, आत्मा का कभी नाम नहीं बदलता। श्री कृष्ण की आत्मा का शरीर सतयुग में ही होता है, नंबर 1 में वही जाता है। বলছেন শরীরের নাম পরিবর্তন হয়, আত্মার নাম তো পরিবর্তন হয় না, আত্মা তো অবিনাশী। আর শ্রীকৃষ্ণের যে শরীর সেটা সত্যযুগে এক প্রথম জন্মেই পাওয়া যাবে, তারপরে সেই শরীর আর অন্য হয়ে যাবে পরবর্তী জন্মে। तो लक्ष्मी नारायण नंबर 1, फिर है सेकेंड, थर्ड, तो उनके मार्क्स भी इतने कम होंगे। यह माला बनती है ना, बाप ने समझाया है रुंड माला भी होती है
और रुद्रमाला भी होती है। विष्णु के गले में रुंडमाला दिखाते हैं। तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो नंबरवार। तो तुम जैसे विष्णु के गले का हार बनते हो, पहले पहले शिव के गले का हार बनते हो, उनको रुद्रमाला कहा जाता है। भावছেন যে আগে আমরা শিব বাবার গলার মালা হচ্ছি, তো শিব বাবার গলার মালাকে রুদ্রমালা বলা হয়। তারপরে যেমন যেমন পুরুষার্থ করব সেরকম সত্যযুগে বিষ্ণুর গলার মালা হব, তো বিষ্ণুর গলার মালাকে रुंडमाला বলা হয়। जो जपते हैं माला पूजी नहीं जाती है, सिमरी जाती है। बाबूजी माला के पूजो करा है ना, माला के सिमरन करा है। माला का दाना वही बनते हैं जो विष्णुपुरी की राजधानी में नंबरवार आते हैं। बाबूजी मालार दाना ताराई है जारा विष्णुपुरी राजधानीते नंबरवार आसबे। माला में सबसे पहले होता है फूल, फिर युगल दाना। प्रवृत्ति मार्ग है ना, प्रवृत्ति मार्ग शुरू होता है ब्रह्मा सरस्वती और बच्चों से, यही फिर देवता बनते हैं। और संगम जुगे ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा माँ सरस्वती द्वारा शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग आरम्भ होच्छे, तारपरे एराई सत्यजुगे देवी देवता होच्छे। लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट, ऊपर में है फूल शिव बाबा। माला फेर फेर कर पिछाड़ी में फूल को माथा टेकते हैं। शिव बाबा फूल है जो पुनर्जन्म में नहीं आते, इनमें प्रवेश करते हैं। भावছেন যে রুদ্রমালাতে উপরে ফুল যে দেখানো হয় সেটাই হচ্ছে শিব বাবা। তো ভাবছে আমার তো কোনো পুনর্জন্ম নেই, এজন্য আমি সবার উপরে আছি। वही तुमको समझाते हैं, इनकी आत्मा तो अपनी है, वह अपना शरीर निर्वाह करती है, उनका काम है सिर्फ ज्ञान देना। जैसे कोई की स्त्री व बाप आदि मरता है तो उनकी आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं, आगे आती थी, अब वह कोई शरीर छोड़कर तो नहीं आती है। यह ड्रामा में पहले से ही नोंद है, यह सब है भक्ति मार्ग। वह आत्मा तो गई, जाकर दूसरा शरीर लिया। तुम बच्चों को अभी यह सारा ज्ञान मिल रहा है, इसलिए कोई मरता है तो भी तुमको कोई चिंता नहीं। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। बच्ची ने जाकर उन्हों को समझाया कि तुम रोते क्यों हो, उसने तो जाकर दूसरा शरीर लिया है, रोने से लौट थोड़ी आएंगी, बख्तावर थोड़ी रोते हैं। तो वहाँ सबका रोना बंद कराए समझाने लगी। ऐसे बहुत बच्चियाँ जाकर समझाती हैं, अब रोना बंद करो, झूठे ब्राह्मण भी नहीं खिलाओ, हम सच्चे ब्राह्मणों को ले आते हैं, फिर ज्ञान सुनने लग जाते हैं, समझते हैं यह बात तो ठीक बोलते हैं। ভাবছেন যে যেখানে কোনো আত্মীয় স্বজন বা কারো কেউ প্রিয়জন মারা যায় তো ব্রহ্মকুমারী দিদিরা গিয়ে বোঝায় যে এখন কান্নাকাটি করে তো কোনো লাভ হবে না, আত্মা তো চলে গেল, আর আত্মা তো কোনো দিন মরে না, আত্মা তো নতুন শরীর নিয়েছে। তো বাবা বলছে যে কান্নাকাটি করারও দরকার নেই, আর যারা লৌকিকে ব্রাহ্মণ কিন্তু অথচ যারা ভিখারি তো তাদেরকে খাইয়েও কোনো লাভ নেই। তো বাবা বলছেন বোনেরা কী করে सच्चा ब्राह्मण के নিয়ে যায়। समझते हैं यह बात तो ठीक बोलते हैं, ज्ञान सुनते सुनते शांत हो जाते हैं। 7 दिन के लिए कोई भागवत आदि रखते हैं तो भी मनुष्य के दुख दूर नहीं होते। अच्छा अनेक बाड़ीते 7 दिन पर्यंत भागवत पाठ है किंतु मानुषेर मनेर दुख जाए ना। यह बच्चियाँ तो सबके दुख दूर कर देती हैं। আবার বাবার জ্ঞানী যোগী বাচ্চারা যখন এরকম কোনো বাড়িতে যায় যেখানে কেউ দেহ রেখেছে তো তাদের দ্বারা মুখ দ্বারা জ্ঞান শুনে তারা একদম পরিবর্তন হয়ে যায়, মনের সমস্ত রোগ দুঃখ दूर হয়ে যায়। तुम समझते हो रोने की तो दरकार ही नहीं है, यह तो बना बनाया ड्रामा है, हर एक को अपना पार्ट बजाना है, कोई भी हालत में रोना नहीं चाहिए। बेहद का बाप टीचर गुरु मिला है जिसके लिए तुम इतना धक्का खाते रहते हो।
पार ब्रह्म में रहने वाला परम पिता परमात्मा मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। बाप देते ही हैं सुख का वर्षा। तुम बाप को भूल जाते हो तब रोना पड़ता है। बाप को याद करेंगे तब खुशी होगी। अहो हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। फिर 21 पीढ़ी कभी रोएंगे नहीं। 21 पीढ़ी अर्थात पूरा बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती है। तो अंदर में कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। বাবা বলছেন সত্য যুগে পুরো 150 বর্ষ পর্যন্ত পূর্ণ আয়ু হবে, এরকম আমরা 21 পিঢ়ি পর্যন্ত সেখানে কোনো রোগ জ্বালা যন্ত্রণা থাকবে না এবং অকাল মৃত্যু থাকবে না। 21 পিঢ়ি পর্যন্ত আমরা কোনো কান্নাকাটি করব না, পুরো সুখী থাকব। তো বলছে এইসব সুখের দিন তোমাদের আসছে, তো তোমাদের ভিতরে কত গুপ্ত খুশি থাকা দরকার। तुम जानते हो हम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनेंगे। हथियार आदि की कोई बात नहीं। तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम्हारे पास है ज्ञान कटारी ज्ञानवान। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में देवियों को स्थूल बाण खड़ग आदि दे दिए हैं। বাবা বলছেন যে তোমরা হচ্ছ শিব শক্তি, তোমাদের হাতে আছে জ্ঞান কাটারি জ্ঞানবান। तो भक्ति मार्गे एटाई यादगार हिसाबे स्थूल बाण देखिए दिए छे। तो बाप कहते हैं ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है, बाकी देवियाँ कोई हिंसक थोड़े ही हैं। तो यह सब है भक्ति मार्ग। साधु संत आदि हैं निर्वृत्ति मार्ग वाले, वह प्रवृत्ति मार्ग को मानते ही नहीं। तुम तो संन्यास करते हो सारी पुरानी दुनिया का, पुराने शरीर का। अब बाप को याद करेंगे तो आत्मा पवित्र हो जाएगी, ज्ञान के संस्कार ले जाएंगे, उस अनुसार नई दुनिया में जन्म लेंगे। अगर यहाँ भी जन्म लेंगे तो भी कोई अच्छे घर में राजा के पास व रिलीजियस घर में वह संस्कार ले जाएंगे। बाबा बोलছেন যে যদি এখনো কোনো জ্ঞানী বাচ্চা দেহ রেখে দেয় তো সে ভালো ফ্যামিলিতে জন্ম নেবে বা কোনো ধার্মিক পরিবারে জন্ম নেবে আর এই জ্ঞানের সংস্কারটাই সঙ্গে নিয়ে যাবে। सबको प्यारे लगेंगे, कहेंगे यह तो देवी है। कृष्ण की कितनी महिमा गाते हैं। छोटेपन में दिखाया है ना माखन चुराया, मटकी फोड़ी, यह किया, कितने कलंक लगाए हैं। अच्छा फिर कृष्ण को सांवरा क्यों बनाया है। वहाँ तो कृष्ण गोरा होगा ना। বলছেন কৃষ্ণের চরিত্রে কেমন কেমন কথা দেখানো হয়েছে যে সে সবাই বাড়িতে গিয়ে মাখন চুরি করতো বা কলসি ফাটাতো। তো এসব কত কলঙ্ক কৃষ্ণের চরিত্রে লাগিয়েছে। বাবা বলছে সত্যযুগে কৃষ্ণ তো মর্যাদা পুরুষোত্তম, সে বাড়ি বাড়িতে গিয়ে মাখন চুরি করে খাবে না বা কারো কোনো গোপীদের বস্ত্র হরণও করতে পারে না। वह तो कृष्ण गोरा होगा ना। फिर शरीर बदलता रहता है, नाम भी बदलता रहता है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस था, उनको क्यों सांवरा बनाया है। वैसे सत्ययुगेर कृष्ण प्रथम राजकुमार एवं से सर्वगुणे सम्पन्न सम्पूर्ण निर्विकारी, तो ताके श्याम वर्ण केन देखानो हयेछे, कालो केन देखानो हयेछे। कभी कोई बता नहीं सकेंगे, वहाँ सांप आदि होते नहीं जो काला बना दे। বলছে সত্যযুগে এরকম কোনো সর্প থাকবে না যে তার বিষে কৃষ্ণ কালো হয়ে যাবে। यहाँ जहर चढ़ जाता है तो काला हो जाता है, वहाँ तो ऐसी बातें हो न सके। तुम अब दैवी संप्रदाय बनने वाले हो, इस ब्राह्मण संप्रदाय का किसी को भी पता नहीं। पहले पहले बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को अडॉप्ट करते हैं। प्रजा पिता है तो उनकी प्रजा भी ढेर की ढेर होगी ना। बाबा बोलছেন ब्रह्मा बाबा के प्रजापिता বলা হয়, तो उनार प्रजाओं अनेक होबे। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहते हैं, स्त्री तो है नहीं, यह किसी को भी पता नहीं है। बाबा बार बार मुरलीते এটা বলেন যে सरस्वती ब्रह्मार पुत्री, उनी स्त्री नय। प्रजापिता ब्रह्मा के तो है ही मुख वंशावली, स्त्री की बात ही नहीं है।
इनमें बाप प्रवेश कर कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, मैंने इनका नाम ब्रह्मा रखा है। जो भी बच्चे बने सबके नाम बदली किए। तुम बच्चे अभी माया पर जीत पाते हो। इसको कहा ही जाता है हार और जीत का खेल। बाप कितना सस्ता सौदा कराते हैं, फिर भी माया हरा देती है तो भाग जाते हैं। 5 विकारों रूपी माया हराती है। বলছে মায়া তোমাদের পিছনে লেগেই আছে, তোমরা এত ভালো পুরুষার্থ করছো, কিন্তু মায়া কোনো না কোনো রূপ ধারণ করে তোমাদের স্থিতিকে নষ্ট করার চেষ্টা করে বা বাবার থেকে বেমুখ করার চেষ্টা করে। तो जिनमें 5 विकार हैं उनको ही आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। मंदिरों में देवियों के आगे भी जाकर महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम ही पूज्य देवता थे, फिर 63 जन्म पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हो। बाप पूज्य बनाते हैं, रावण पुजारी बनाते हैं। तो यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कोई शास्त्र थोड़े ही पढ़ा हुआ है, वह तो है ही ज्ञान का सागर। बाबा बोलছেন যে আমাকে কোনো শাস্ত্র পড়তে হয় না, আমি তো নিজেই জ্ঞানের সাগর। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ऑलमाइटी यानी सर्वशक्तिमान। तो बाबा जे पुरो ब्रह्मांडेर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, तो ताके कोनो शास्त्र पढ़े ज्ञान देवार प्रयोजन नहीं, बाबा तो सब किछु जानेन। तो बाप कहते हैं सभी वेदों शास्त्रों का सार मैं जानता हूँ, यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं इन सब बातों को जानता हूँ। द्वापर से ही तुम पुजारी बनते हो, सतयुग त्रेता में तो पूजा होती ही नहीं, वह है पूज्य घराना, फिर होता है पुजारी घराना। বলছেন সত্যযুগ ত্রেতাতে পুজো পার্বণ নেই, এই জন্য সেটা পূজ্য ঘরানা, আর দাপর কলিতে পুজো আরম্ভ হচ্ছে, তো এটা পুজারি ঘরানা। तो इस समय सब पुजारी हैं। यह बातें कोई को मालूम नहीं है, बाप ही आकर 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। पूज्य पुजारी, यह तुम्हारे ऊपर ही सारा खेल रहता है। हिंदू धर्म कह देते हैं, वास्तव में तो भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू। कितनी बातें समझानी पड़ती है, यह पढ़ाई है भी सेकंड की, फिर भी कितना समय लग जाता है। कहते हैं सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी पूरा हो न सके। बाबा बोलছেন যে জ্ঞান বাবার এত বিশাল যে পুরো সমুদ্রকে যদি ইঙ্ক বানানো হয়, আর পুরো জঙ্গলকে যদি কলম বানানো হয়, আর মাতা সরস্বতী যদি স্বয়ং লেখে, তাও বাবার এই জ্ঞান শেষ করা যাবে না, এত বিশাল জ্ঞান আছে। अंत तक तुमको ज्ञान सुनाता रहूँगा, तुम इनका किताब कितना बनाएंगे। शुरू में भी बाबा सवेरे सवेरे उठकर लिखते थे, फिर मम्मा सुनाती थी, तब से लेकर छपता ही आता है। कितने कागज खलास हुए होंगे। बाबा अनुभव শোনাচ্ছেন যে শুরু শুরুতে ব্রহ্মা বাবা সকাল সকালে উঠে লিখতেন মুরলি, তারপরে মাম্মা ক্লাসে শোনাতেন, তারপরে এটাকে প্রিন্ট করা হতো, তো কত পেপার লেগেছে। गीता तो एक ही इतनी छोटी है, गीता का लॉकेट भी बनाते हैं। गीता का बहुत प्रभाव है, परंतु गीता ज्ञान दाता को भूल गए हैं। बाबा बोलছেন भक्ति मार्गे गीतार खूब प्रभाव, किंतु गीता ज्ञान के दिएছে এটা মানুষ भूले গেছে। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। এবার ধারণার মুখ্য সার। 1 নম্বর পয়েন্ট, ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। বলছে জ্ঞানের তলোয়ার দিয়ে विकार के जय करते হবে। ज्ञान के संस्कार भरने हैं।
पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना है। बलছেন পুরনো দুনিয়া আর পুরনো শরীরকে একদম ভুলে যাও। 2 नंबर पॉइंट, भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। कोई शरीर छोड़ देता है तो भी दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। বাবা বলছেন যে সবসময় নিজের ভাগ্যের খুশিতে থাকো, যে আমরা কত উঁচু ভাগ্য পাচ্ছি, সত্যযুগে আমরা কত সুখী থাকবো, তো এই জন্মে কোনো রকম চিন্তা করো না। আর বাবা বলছে কেউ যদি দেহ ত্যাগ করে তাহলে তার দুঃখে দুঃখী হও না, কান্নাকাটি করো না। তোমরা তো জানো যে আত্মা কখনো মরে না, আত্মা একটা দেহ ছেড়ে আবার একটা নতুন দেহ ধারণ করছে। আজকের বরদান, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। अभी का यह ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। বাবা বলছেন সঙ্গম যুগে প্রত্যেক বাচ্চাই বাবা থেকে তাজও পাচ্ছে এবং সিংহাসনও পাচ্ছে। তো তাজ হচ্ছে বিশ্ব কল্যাণ করার দায়িত্বের তাজ, আর তখ্ত হচ্ছে সিংহাসন, হচ্ছে বাপ দাদার দিলরূপী সিংহাসন। তো দুটোকে কায়ম রাখো, দুটোতে সবসময় আসীন হয়ে থাকো, তো বাবা বলছেন स्वतः যোগী হয়ে যাবে। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात ही नहीं, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है और दूसरा प्राप्ति अखुट है। बाप दादार दिले बसा माना बाबार থেকে কত কাছের সম্পর্ক, আর बाप दादा सेवार जिम्मेवारीर ताज परिয়েছেন, माना কত प्राप्ति, अखुट प्राप्ति। तो जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ स्वतः याद होती है। तो বলছেন যেখানে প্রাপ্তি সেখানে ন্যাচুরাল স্মরণ থাকে, তো কোনো মেহনত করতে হয় না। তো বাবা বলছেন তাজ আর তখ্ত দুটোকে কায়ম রাখো। আজকের স্লোগান, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। বাবা বলছেন নিজের বুদ্ধিকে একদম প্লেন রাখো, মানে একদম স্পষ্ট সাদা, তখন যা কিছু তোমার প্ল্যানিং চলছে সে প্ল্যানিংকে প্র্যাকটিক্যালে আনা সম্ভব হয়ে যাবে, আর তখন সাফল্যতা তোমার কাছে চলে আসবে। ওম শান্তি।